have a look on a booklet and try to solve some question on ratio and proportion. I think we are on ratio and proportion, right? Yes, sir. Okay, just 1 minute. Zoom.us. Just tell me कहाँ तक हो गया था last time? Anyone remember? सर आप क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे थे सर, ऐसे एग्जैक्टली सर याद नहीं है। Okay, just a minute. I think कितना हो गया था? Continued सर proportion. हमें वो क्वेश्चन Continued proportion done हो गए थे and how to divide the शायद last question I think So we question. did the कि 782 rupees divided into 3 parts, वो वाला क्वेश्चन किया था। okay so I think हमने कर लिया था this question 782. Okay, question number 8. Let me share the screen. Question number 8. Okay, now next question on ratio and proportion is on. One is income and expenditure. For example, let's take one example from the booklet or in PPT. Okay, so income and expenditure, the question is like this. Okay, two friends, the ratio of their income is 3:4 and ratio of their expenditure is 2:3. There are two friends A and B. The ratio of their income is in 3:4 and the ratio of their expenditure is 2:3. In the end of a month, if their savings are 2,000 and 3,000 respectively, find their monthly income. Find their monthly income. So this is the question on income and expenditure. We know that saving is equal to income minus expenditure. जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम खर्च कर रहे हैं, उसे माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग बचेगी, जो हम पैसा बचा सकते हैं. Saving is equal to income minus expenditure. So we will use this equation. So there are two variables. The first variable is income and the second variable is expenditure. So we'll take income as the income of A and B. So A and B are the two friends. So their income are 3x and 4x. These are their incomes. And their expenditure are 2y. See, why I'm taking two different variable, because income and expenditure are two different things. So income के लिए मैंने x use कर लिया, for expenditure I'm using y. So this is the income of A and this is the expenditure of A. This is the income of B. This is the expenditure of B. We know that saving is equal to income minus expenditure. According to the question, saving of A is 2,000 rupees and B is 3,000 rupees. Now by using this, we can easily make an equation. So income minus expenditure, the equation number 1 is
For A, the equation is 3x minus 2y equal to 2000 rupees. Similarly, next equation for B is his income is 4x and expenditure is 3y. His saving is 3000 rupees. Now we have two equations in two variables. We can solve these equation either by using substitution or by the elimination. ये सबको आते हैं? Equation solve करना आती होगी सबको? Yes, sir. सबको आती होगी. Yes, So they sir. are asking for income. It means we need to find the value of x. So eliminate y. So to eliminate y, अच्छा मैं थोड़ी वैल्यू अलग ले लेता हूँ. 2000 3000 तो कैंसिल, 6000 हो जाएंगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी. So we are taking 4000 and 3000 respectively. ठीक है, इससे गलत ना है हमारा आंसर. So everyone know how to solve these two equation. Eliminate y. Yes, sir. y को eliminate कर देते हैं. y को eliminate करने के लिए we have to make the coefficient equal. So in equation first I have to multiply it by 3. Equation second I have to multiply by 2 to eliminate y. So it will gives me 9x 6y. X 6000. X is 6000, 1200, and this will gives me 8x minus 6y equal to 600. To eliminate, just subtract it. Due to subtraction, sign changes, so y cancel. So x is equal to 6000 rupees. Now, if they are asking monthly income, then their monthly income is 3x. So income of A is 3x, means 3 into 6, 1800 rupees. 18,000. 4y means 24,000. This is their monthly income. Okay. मंथली इनकम का रेशियो दिया है, मंथली इनकम पूछी जाती है. और मे बी इफ द रेशियो ऑफ, एक चीज याद रखना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कैसे कर देते हैं. फॉर एग्जांपल द रेशियो ऑफ इनकम इज ईयरली. इट मींस दिस इज देयर ईयरली इनकम. एंड इफ द क्वेश्चन आस्क फॉर मंथली इनकम, यू हैव टू डिवाइड बाय 12. ओके. अगर ये जो रेशियो दिया हुआ है, इनके ईयरली इनकम का रेशियो दिया हुआ है, जो हमारा फाइनल आंसर 3x आएगा, वो आएगा हमारा ईयरली इनकम. इट मींस 18,000 rupees is yearly income. We have to divide by 12 to find the monthly income. Vice versa also, अगर monthly income दी हुई है रेशियो और ये yearly income पूछे, so we have to multiply it by 12. Okay? ये छोटे से पॉइंट है, कभी कभी हम मिस कर जाते हैं, याद रखना. ओके. सर ये तो Anyone have any doubt? मंथली No, इनकम sir. नहीं आई सर ये. सर हमें अब मंथली, देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि द रेशियो ऑफ देयर मंथली इनकम इज गिवन, देन जो भी आंसर आएगा वो मंथली के हिसाब से आएगा. ठीक है. यस सर. तो इस क्वेश्चन में 18,000 हमारी मंथली इनकम आई ना सर? हाँ, मैंने रेशियो मंथली बोला था. अगर इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज गिवन इन एज पर द मंथली, as per the month, means the ratio of A and B income, the ratio of income of A and B monthly is 3:4 and expenditure is 2:3. Find their monthly income, then answer is 1800 rupees. If they ask find the yearly income, यही क्वेश्चन होता, मंथली की जगह ईयरली होता, so we have to multiply it by 12. वाइस वर्सा, अगर क्वेश्चन ये होता तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें. ठीक हो, 4 कैसे बनेंगे? एक मंथली इनकम दी हुई है और मंथली ही पूछी जाए, एक मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है और ईयरली पूछी जाए, दूसरा ईयरली इनकम दी जाए और मंथली पूछी जाए, और ईयरली इनकम दी जाए और ईयरली पूछी जाए. तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे. अब ध्यान रखना किसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या गिवन है. ठीक है. यस सर. मंथली मंथली पूछा गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मंथ का रेशियो दिया हुआ है, ये मंथ का आंसर आएगा. मंथली रेशियो दिया हुआ है, ईयरली पूछा जा रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे. ईयरली दिया हुआ है और मंथली पूछा जा रहा है, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा. ईयरली ईयरली है तो कोई दिक्कत नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऑन कॉइन्स. कहाँ गया वो क्वेश्चन कॉइन्स का?
ये वाले क्वेश्चन. In a bag, there are coins of 25 paise, 10 paise, and 5 paise in the ratio of 1:2:3. If there are rupees 30 in total, how many 5 paise coins are there? अब एक बैग में कॉइन्स पड़े हुए हैं और हमें मालूम है टोटल वैल्यू इस बैग की 30 रुपीज है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉइन है, 25 पैसे कॉइन्स और 10 पैसे कॉइन्स और 5 पैसे कॉइन्स. वो तो तुमने देखे भी नहीं होंगे. 25 पैसे का कॉइन देखा है? 5 पैसे तो देखे भी नहीं, मैंने नहीं देखे. 25 तक तो देखे. So we have total 30 rupees in all, and we know that we have three types of coin in a bag. The ratio of 1:2:3. We have to find how many 5 paise coins are there. This is the question. Okay, so there are two ways to solve this question, either by using paise concept or by using rupees concept. So first is by using paise concept. ये सब कुछ पैसे में कन्वर्ट कर लें. तो या तो सब पैसे में ही है बट ये रुपीज में. सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स. कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है. सो 25 पैसे कॉइन्स कितने हैं? 1x. 10 पैसे कॉइन्स कितने हैं? 2x. एंड 5 पैसे कॉइन्स वी हैव 3x. Okay, if I convert this rupees also in paise, so total paise, how many paise I have? 1 rupees is equivalent to 100 paise. 1 rupees is equivalent to 100 paise. So if I convert all the things in paise, it means the sum of all these 25 paise coins, 10 paise coins, and 5 paise coins must be equal to 300 or 3000 paise. So 1x plus 2x plus 3x is equal to 3000 paise. Is it correct? Is my equation correct? Yes, sir. Anyone from the class? Ajit, Nishant और कौन कौन है क्लास में? ये स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा? आ गया. रिया, विनय, शुभम, दिशा. Is it correct? Yes, sir. अच्छा, 10 पैसे के 2 कॉइन्स हैं. टोटल पैसे कितने हुए? टेन पैसे के 2 कॉइन्स मीन्स टोटल पैसे हाउ मच? 20. Sir, 20 paise. 20 पैसे. जबकि मैंने यहाँ कितना लिख दिया? Sir, 2x. तो मेरे पे जितने कॉइन्स हैं उससे उसको रेस्पेक्टिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. मेरे पास 10 कॉइन्स हैं 5 पैसे के, तो 10 into 5 नहीं करना पड़ेगा. If I have 10 paise, 10 coins of 5 paise, then total money is 50 paise. 10 into 5. So I have to this right now. This equation is wrong. I have to multiply. So total rupees I have in terms of 25 paise is 25x. In 10 paise coins is 20x. And in 5 paise coins I have 15x. This is not the correct equation. The correct equation is 25x plus 20x plus 15x. ये सिर्फ नंबर्स हैं. These are not real values. These are numbers, coins numbers.
हमारे पास 5 कॉइन्स हैं तो हमें 5 कॉइन्स को मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव वैल्यू से। हमारे पास 5 कॉइन्स है 10 पैसे के, यानी 10 इंटू 5 50 पैसे। ठीक है, सो दीज आर ओनली नंबर्स, दीज आर टाइप्स। So types multiply with numbers give you the real value. This is the total value. Okay, so total value in the bag is 3000. So I equate all the things equal to 3000. Just add it, but 25 plus 40 60. So 60x is equal to 3000 rupees. So x is equal to x कितना आ गया? $50. So the value of x is 50. क्या पूछा है हमसे? How many 5 पैसे coins we have? So 5 पैसे coins कितने थे? 3x. So 50 into 3, 150 coins. Okay. Now try to solve this by using the now try to solve this by using the second type, which is by converting all the things in rupees. So I have 1x, 2x, and Sir, 3x coins. sir, after we get the answer x is equals to 15, now what is the next step? So my network issue, there was my network issue, that's why. Just multiply it by the respective 3x, 2x, and 1x. So this is the we got the value, but here we need how many 5 paise coins are Okay, there? But this is the value, right? Just a minute. So we have just a minute. 25 is x, 50 is the value, no? मैंने क्या कन्वर्ट किया in terms of values? Okay, sorry. So we have 15x equal to 750, 150. This becomes 100. This becomes 50 divided by 25 divided by 10 divided by 5. So 2 coins, 10 coins, and 30 coins. So 10 coins of 10 pesos, 100 rupees, 100 pesos. So 30 into 550. So 50. कहीं जीरो की मिस्टेक हो गई है मेरे से। just a minute, let's just एक मिनट दें, बस कहाँ जीरो कहीं कन्वर्ट कर दीजिए मैंने। Sir, I guess 50, 100 and 150 will be the correct answer because they are only the number of coins.
ओके हाँ, नंबर ऑफ कॉइन्स सही तो है, 150 कॉइन्स। कॉइन्स पूछे ना, हाँ एक्स, ठीक ठीक। Actually, I got confused between rupees and coins. Okay, so 150 is the correct answer. किसने क्या पूछा था, मैं भूल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन किसने पूछा था? The question was, sir, मैंने पूछा था. So I asked हाँ कि there are in this we have converted it into paisa, means this 25x. Then we are putting the x value in 3x. हम्म So I was confused that कि coins were asked. ओके ओके, वही मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्या पूछ रहे हो। सो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द नंबर, द नंबर्स, नंबर्स ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, सॉरी 5 पैसे, कि उसमें 5 पैसे कॉइन्स कितने थे। सो कॉइन्स आर 1x 2x एंड 3x, सो दैट्स व्हाई वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, अगर पैसे से कंफ्यूज हो रुपीज में देख लेते हैं, रुपीज से भी हो जाता है क्वेश्चन। रुपीज से कैसे होगा, नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 25 10 एंड 5। सो हियर वी हैव 25 पैसे कॉइन्स, 10 पैसे कॉइन्स एंड 5 पैसे कॉइन्स। दीज आर द नंबर्स 1x 2x एंड 3x, एंड टोटल मनी इज इक्वल टू 30 रुपीज। ओके, 25 पैसे रुपीज में कितने होते हैं? 0.25. It means 25 paise is equivalent to 1 by 4 rupees. 100 paise is equivalent to 1 rupees. 25 paise 1 by 4. 20 paise is 1 by 5 rupees. 10 paise is 1 by 10 rupees. 5 paise is 1 by 20 rupees in terms of rupees. 25 पैसे means 0.4 ना, sorry 0.25 which is 1 by 4. So if I have 1x coins of 25 paise, 2x coins of 10 paise and 3x coin of 5 paise, then to convert the whole thing in rupees, या हमने whole thing को काय में convert करा था, पैसेज में। to convert the whole thing in rupees, which is already the right hand side is already in rupees but left hand side in terms of पैसे। so 25 पैसे कितने हो गए, जितने भी कॉइन्स होंगे उसे अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा वो। मान लो मेरे पास 200 पैसे हैं, आई हैव 200 पैसेज और इन टर्म्स ऑफ 25 पैसेज, so how many coins how many rupees I have, 200 upon 4, 5 rupees. Okay, so to convert पैसे into rupees, these are the respective values. 25 पैसे है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 10 पैसे को 10 से डिवाइड कर देंगे, 5 पैसे को 20 से डिवाइड कर देंगे। Now this thing is converted into rupees, so add it, so इसको ऐड करना पड़ेगा। so x upon 4 plus 2x upon 10 plus 3x upon 20 is these all thing is in terms of rupees equal to 30. So how to simplify this equation? Just take the LCM, which is 20. 4 5s are 10 2s are 2 2s are 4, 21s are equivalent to 30. So 4 plus 5 plus 3 is 12. So 12x is equal to 20 into 30, which is equal to 600. So x is equal to देखो x की वैल्यू दोनों जगह से 50 ही आई है। अब हमारे कॉइन्स क्या थे, 1x 2x एंड 3x। हमें किसका किसका बताना था, 5 पैसे कॉइन्स। तो 5 पैसे कॉइन्स थे हमारे पास 3x which is equal to 1। whether you use rupees concept or a पैसा concept, your answer will be same। ठीक है, सो ये मैंने इसे पैसे में कन्वर्ट किया है, इसे मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया है। अब बात आती है कि क्वेश्चन मिक्स आ जाए तो, मान लो कि हमारे पास पैसे में भी है और रुपीज में भी है। एक आध क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बुकलेट में होगा। सर हम्म
सर वो 1:2:3 उसको तो रेशो के फॉर्म में दिया है, रेशो तो यूनिटलेस रहता है, फिर उसको मतलब यूनिट का क्या सिग्निफिकेंस आ गया है इस क्वेश्चन में? रेशो यूनिट लेस रहता है तो रेशो तो हम यूनिट लेस ही निकालना है, कॉइन्स के नंबर ही तो निकालना है, पैसा तो नहीं निकाला ना हमने। हाँ सर, अगर कॉइन्स का नंबर निकालना है तो उसको पैसों में कन्वर्ट करके आप करो या रुपी में नहीं नहीं, कन्वर्ट करके करो, आंसर डायरेक्ट। तो मतलब हाँ, मेरा मैं समझ मतलब ये गया, है कि उसको तुम्हारा मतलब ये कन्वर्जन है कि करना इसे जरूरी डायरेक्ट, थोड़ी ना था। डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं किया, और एग्जैक्टली इसे 30 के डायरेक्टली इक्वल क्यों वैसे नहीं क्यों कर नहीं? दिया, 30 के इक्वल क्यों नहीं कर दिया, यही है ना क्वेश्चन। हाँ सर। क्योंकि ये नंबर्स नहीं है ना, 30 रुपीज है। अब मान लो ये होता ना कि आई हैव 1 रुपीज को, आई हैव कॉइन्स ऑफ 25 10 पैसे 5 कॉइन्स, द रेशियो 1:2:3 एंड टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 30, देन हम्म। यू कैन इक्वेट, बट दिस इज रुपीज, ये तो ओके यूनिट है समझा ना। सर। हाँ ये समझा। रुपीज है, या तो इसे फिर रुपीज में कन्वर्ट करो इस चीज को, या फिर इस चीज को पैसे में कन्वर्ट करो। अगर डायरेक्ट ये दिया होता कि वी हैव द रेशियो 1:2:3 एंड टोटल कॉइन्स आर 30, तो हम ये यूज करते डायरेक्टली, ये वाली इक्वेशन। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ समझा सर। सर हाँ सर डाउट सर, जब टोटल कॉइन्स 30 हैं तो फिर हमारा हाँ, 3 पैसे के कॉइन्स 150 कैसे आएंगे? नहीं नहीं, वो तो मैं एज अ एग्जांपल बोल रहा था, ओके 30 सर। नहीं होगा, वो तो एज अ एग्जांपल, इफ इट इज टोटल इक्वल टू 30 देन यू कैन डायरेक्टली इक्वेट देम, फिर 1x + 2x + 3x। ओके सर। कहाँ थे हम, रेशियो प्रोपोर्शन में, कॉइन्स प्रॉब्लम। हाँ चलेगा। बता कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके बता क्विकली सब। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल रुपीज इज 36.9, total coins are 180 in the form of 10 paise and 25 paise. How many 10 paise coins we have? अब ये डायरेक्ट दिया तुम्हें 180 coins है टोटल। क्वेश्चन नंबर 9, all of you try this question. किसी का नहीं आया आंसर? कशिश, मीना, अंकिता, शुभम, लिडिनारो, एनीवन?
So Hmm. 25 paise coins are 126 and 10 paise coins are 54. 54 ठीक है देखते हैं. So one thing is we have 10 paise coins and 25 paise coin and total coins numbers is 180. So x plus y is equal to 180. Now total rupees is 36.90. इसे पैसे में कन्वर्ट कर दूं. So I'm converting this thing in terms of paise. So total paises are 3690. Now we have 10 paise coins, so total money is 10x. We have x coins of 10 paise, so total money is 10x. Similarly, we have y coins of 25 paise, the total money is 25y. And total sum is 3690. This is total amount I have. So one equation is this. One equation is this. Either use substitution or elimination. क्या निकालना है हमें? Which coins निकालना है? 10 paise coins. Use elimination. Eliminate y. To eliminate y, just multiply this equation by 25. So after multiplying by 25, you will have 25x plus 25y in equal to 18 into 25 gives you 18 5s are 8 5s are 90, 18 2s are 36, 36 plus 90 45. Just subtract it. X is 54. So we have 54 coins of 10 paise. So y is total are 180. Just subtract 54 from 180. If I subtract 54 from 180, I will have 126. Okay. Any doubt in this question? Anyone have any doubt? Okay, the problem कहाँ create होगी वो मैं बताता हूँ. For example, I have 2 rupees coins, 1 rupees coin, and 20 paise coin in the ratio of 2:3:4, and total money is 50 rupees. Something like this. Now we have to find 1 rupees coin or 2 rupees coin. Now here 2 things is in rupees and 1 thing in paise. So I have to convert according to it. So 2 rupees coin मेरे पास 2x है, ये 3x है, और ये मेरे पास 4x है. और टोटल मनी मेरे पास रुपीस के टर्म्स में 50 रुपीस. Now my task is either I have to convert this thing in rupees or I have to convert all the things in paise. So easy step here is to convert 20 paise in rupees. We have to divide it by 5. Okay. And one more thing, we have 2x. So total amount is 2 into 2x, 1 into 3x, प्लस 1/5 into 4x. एक्चुअली यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई किया. क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं तो 4 रुपए होना चाहिए टोटल. ऐसे मेरे पास 3 1 रुपए के सिक्के हैं तो 3 रुपए होना चाहिए टोटल. ऐसे मेरे पास 20 पैसे के सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल जो भी है बाई 5 से डिवाइड होना चाहिए. मान लो मेरे पास 2 कॉइन्स थे, मेरे पास हो सकता था रेशियो होता 5:7:8, something like this. So in that case I have to multiply 5x by 2, 7x by 1, and 8x by 1/5. So these are the in terms of rupees. तो जितने भी कॉइन से सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है. 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास तो, और मेरे पास 10 ऐसे सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट मेरे पास होगा 5 into 10, 50 रुपए. So this is all from
दिस क्वाइंस प्रॉब्लम और दी हुई है उसमें बुकलेट में, ट्राई करना सॉल्व। अच्छा, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वन इज क्वेश्चन इज ऑन दिस क्वेश्चन, क्या था, थ्री लीव्स ऑफ, okay, one question like this. See this question: a dog takes 4 leaves for every 5 leaves of a hair, but 3 leaves of a dog is equal to 4 leaves of a hair. Dog cat हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, dog cat cat loin something like this. The question we have to find the ratio of their speeds. क्वेश्चन बहुत बार कई जगह अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे डॉग और हेयर दिया हुआ है और हमें पूछा जाता है व्हाट इज द स्पीड। एनीवन फ्रॉम द क्लास ये क्वेश्चन देखा है कभी? No, sir. Okay, so a dog takes 4 leaves for every 5 leaves of a hair, but cat कर लो, five leaves of, but 3 leaves of a dog is equal to 4 leaves of a cat. Compare their speed. So वैसे तो इसका सॉल्यूशन बहुत थोड़ा अलग सा होता है, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जो भी चीजें दी हुई है उन्हें लिखो। इफ इट इज डॉग जस्ट राइट डॉग, इफ इट इज कैट राइट कैट। व्हाट इज गिवन? 4 leaves of dog, 5 leaves of, लीव्स में छलांग मार रहे हैं, 5 leaves of cat। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डन, बट अब यहाँ जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन देखोगे ना, यहाँ पहले डॉग दिया था फिर कैट दी हुई थी, अब यहाँ पहले कैट देंगे और फिर डॉग देंगे, उल्टा भी कर देते हैं। बट 3 leaves ऑफ डॉग, यहाँ सीधा भी रखते हैं, जैसे वैल्यू वैसे रखते हैं। अब लिखा बट 3 leaves ऑफ अ डॉग इज इक्वल टू द 4 leaves ऑफ, so 3 leaves of a dog is equal to 4 leaves of a cat, and they ask the ratio of their speed of dog to the speed of cat और या जो भी दिया हुआ है। सो अननेसेसरी कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कहा जैसे सॉल्यूशन अगर देखोगे इसका सॉल्यूशन तो कुछ सॉल्यूशन नहीं दिया। See, this is a question. 4 leaves of every 5 leaves of air, but 3 leaves of dog are equal to 4 leaves of air. If you see the answer, 3 dogs इक्वल टू 4 एयर कर दिया, डॉग टू एयर का रेशियो ले लिया, फिर लेट्स 1 लीव इक्वल टू 3 मीटर, डॉग्स लीव इक्वल टू 4 मीटर, एंड देन फाइंड द स्पीड 4 into 4 एंड 5 into 3 समथिंग लाइक दिस करा हुआ है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ याद रखना। डॉग लिखा, कैट लिखा, डॉग की वैल्यू लिखी 4, कैट की वैल्यू लिखी 5, यहाँ देख लिया 3 leaves ऑफ कैट दिया या डॉग दिया, रेस्पेक्टिव वैल्यू उसके नीचे लिखना है। ठीक है, डॉग के नीचे डॉग की वैल्यू लिखना है, कैट के नीचे कैट। कभी कभी ना या उल्टा लिख देते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं ऐसा देते हैं क्वेश्चन, व्हाट 3 leaves ऑफ कैट इज इक्वल टू द 4 leaves ऑफ डॉग। ये ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन को कभी कभी, यानी उल्टा कर देते हैं, जस्ट रिवर्स।
अगर अभी तुम देखोगे क्वेश्चन को, अब देखोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन कुछ और था, मैंने कुछ और कर दिया अभी। तो पहले यहाँ दिया हुआ था द फर्स्ट इज डॉग एंड सेकंड इज, फर्स्ट इज डॉग एंड सेकंड इज cat, but in the next sentence first is cat and second is dog. तो वैल्यू लिखते टाइम ध्यान रखना, फर्स्ट इज डॉग देन कैट देन सेकंड इज कैट एंड फर्स्ट इज डॉग। तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ लिखी हुई है ये जस्ट रिवर्स हो जाएगी। कैट के नीचे कैट की वैल्यू, डॉग के नीचे डॉग की वैल्यू। अब क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 4 3s are 12 and 4 5s are 20. दिस इज द रेशियो। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 4, 3:5। बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया बहुत सारा क्वेश्चन को, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है। बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज बिटवीन डॉग एंड एयर। सो यहाँ लिखा डॉग, 4 leaves of dog is equal to 5 leaves of this, but 3 leaves of dog is equal to 4 leaves of hair. To find the ratio of their speed, the answer is just cross multiply this, 4 into 4 is 16, 3 into 5 is 15. आंसर ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा ऐसे कुछ कर, नो नीड टू डू लाइक दिस, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, डॉग हेयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई। देख लेना बस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डॉग टू एयर का स्पीड रेशियो पूछा है या एयर टू डॉग का स्पीड रेशियो बनाया। दिस इज द रेशियो ऑफ डॉग टू एयर, डॉग फर्स्ट है, एयर सेकंड पे। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन, ये भी बहुत आता है, द रेशियो ऑफ। So why we are doing cross multiplication? एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ में दो चीजें दी हुई हैं। एक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आ गया क्वेश्चन, हाँ, द फर्स्ट थिंग इज इन क्वेश्चन दे हैव मेंशन the 3 leaves of dog are equal to the 4 leaves of hair. It means they are giving us the distances. These are the time taken, और यानी ऐसे कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या किया है इन्होंने, 1 leaf is equal to 3 मीटर एंड dog leaves is equal to 4 मीटर, या डिस्टेंस मान ली है। और डिस्टेंस ये इन्होंने डिस्टेंस मान ली है, और डिस्टेंस को यूनिटरी मेथड से ये डॉग एंड हेयर का रेशियो ले लिया है यहाँ 4/3। ये जो रेशियो है ये टाइम्स का रेशियो, द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन है, और दिस इज द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो क्या होता है, स्पीड आती है ना, स्पीड इज Yes, sir. डिस्टेंस अपॉन टाइम। Time. तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 3:4, और टाइम का रेशियो क्या है, 4:5। रेशियो अपॉन रेशियो कन्वर्टेड इनटू Cross मल्टीप्लिकेशन। multiplication. ये मैंने कुछ वैल्यू अलग लिख दी हो तो देख लेना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो वो 3:4 था, 4:5 था, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। सो दिस इज, दे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 15/60। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ, कहाँ गया, रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन RS अग्रवाल, SSC, UPSC हर किसी में पूछा गया है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर फॉर द होल अर्थ इज 1:2।
and 2:3 in northern hemisphere. What is the ratio of land to water in southern hemisphere? So we all are familiar that Earth is divided into two hemisphere. One is northern hemisphere, one is southern hemisphere. सबको पता है ना ये तो? So we have Yes, sir. the Earth, and the ratio of land to water is 1:2 on the whole Earth. But in the northern hemisphere is 2:3, and in the southern hemisphere it is. We have to find it. This is a question. ये बहुत बार पूछा गया question है. So many times it comes in so many exams. थोड़ा ध्यान से देखना थोड़ा इस क्वेश्चन. Our Earth divided into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere, equally. ठीक है? Half part is this, half part is this. Now we have a question on the whole Earth. The ratio of 1:2. Northern hemisphere, the ratio is 2:3. We have to find what is the ratio in southern hemisphere. This is the question. Now, if we apply the concept of ratio and proportion, so how much on the whole Earth, how much land we have? 1/3, and water 2/3. अब ये मत पूछना कैसे आया. 1 + 2 is 3. Total parts are 3, out of which one part is this and 2 part is this. So land is 1/3 and water is 2/3 on whole Earth. ठीक है? Similarly, in northern hemisphere, it is 2/5 and 3/5. So it's 2 + 3 is 5 part. Out of 5 part, this is 2 part, this is 3 part. But we also know that this is not the complete one. The northern hemisphere is equally divided. Whatever the value of water or whatever the value of land, it is equally divided between northern hemisphere and the southern hemispheres. So we have to multiply this value by half. क्योंकि ये आधा पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे होगा तो आधा पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर पे होगा. So we have to divide it by 1/2, yeah, or we can say we have to multiply it by 1/2 or divide it by 2. So actually in northern hemisphere, the area we have is 1/5, and the water we have is 3/10. Now total Earth is 1/3, and in northern hemisphere is 1/5. So in southern hemisphere, the value of land is equal to total area minus area on northern hemisphere. So 1/3 minus 1/5 gives you 5 minus 3 is 2. 2/15. Similarly, water is total water is 2/3, and in northern hemisphere it is 3/10. Is 11/30. So this is the land on the southern hemisphere. This is the water. If I take the ratio of land to water in southern hemisphere, then my ratio is 2/15 divided by 11/13, which is equal to 2/15 into 13/11. You simplify it, you will have 4/11. The ratio of land to water on whole Earth is 4/11. So क्या करा मैंने?
फिर से देखो, what I did here is, so the information given in question, I just write down the information given in the question. So this is the value of earth, sorry, the value of land on earth, one third part, and water is 2/3 part. Similarly, this ratio is given for northern hemisphere. It is 2 out of 5 and 3 out of 5. But why I multiplied by 1 by 2, or just I multiplied up 1 by 2 means I just divided by 2, because the earth the earth is divided into two equal hemisphere. So whatever the value in northern hemisphere, it must be the half of the total value. So I have to multiply it by half. गिवन होगी ना हमें सर, Sorry? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोला है अगर, तो वो तो हाफ ही गिवन होगी हमें सर। अगर नहीं टोटल नहीं नहीं अर्थ होते तब हम उसे डिवाइड करते ना हाफ से। नहीं नहीं नहीं, हाफ नहीं गिवन है, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे रेशो गिवन है। दिस इज नॉट हाफ। हाफ होती तो फिर तो यहीं से डायरेक्ट बता देता मैं। अगर हाफ हाफ ही होती तो इसी रेशियो से मैं आंसर बता देता कि ओके सर। 0.5 लैंड होगी उस पे नॉर्थन हेमिस्फीयर, 0.5 होगी और साउथर्न हेमिस्फीयर पे। ऐसे ही 1/2 पार्ट उस पे होगा वाटर का, 1/2 उस पे होगा वाटर का, यानी 1 लीटर। अगर मैं लीटर में देखूं तो फिर तो काम ही खत्म हो गया था, यहीं से बता देता मैं। ये इतना सारा देने की जरूरत नहीं थी। ये जो दिया हुआ है ना, ये रेशियो दिया हुआ है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। और हमें मालूम है अगर इतना पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर पे है तो ये टोटल अर्थ का आधा ही होगा। टोटल इन रेस्पेक्ट टू, व्हाई आई एम डिवाइडिंग इट बाय 2, बिकॉज इन रेस्पेक्ट टू द अर्थ ये जो वैल्यू आई है ना, देखो ये तो नॉर्थन हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है रेशियो। मान लो 50 लीटर कुछ था, उसमें से 5 लीटर मिल्क था और 10 लीटर कुछ और था, उसके रेस्पेक्ट में तो ये रेशियो है। बट अर्थ के रेस्पेक्ट में थोड़ी है ये रेशियो। अर्थ के, टू फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो according to the earth, I have to divide it equally between northern hemisphere and southern hemisphere. So that's why I divided by 2। से भी 2 से इसलिए डिवाइड किया, 2 से डिवाइड का मतलब I have multiplied by 1/2। ओके यस सर। चलो, सो ये दो क्वेश्चन याद है, एक लीव वाला, एक ये रेशियो वाला। हाँ, वैल्यू चेंज आ सकती है, इंस्टेड ऑफ 1/2 and 2/3 मे बी देयर इज some other ratios, but the procedure is same। ओके, यहाँ पे भी ऐसे किया हुआ है उन्होंने, अलग से नहीं किया। ये देखो वही किया है, देखो मैंने जो बताया था ना, वाटर इज 3/10 एज नॉर्थन हेमिस्फीयर हाफ ऑफ द होल अर्थ, दैट्स व्हाई दे मल्टीप्लाइड बाय हाफ। Okay, so this is all from ratio and proportion. The next topic is partnership। इसी में आता है वो भी पार्टनरशिप। इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, try to solve some question, ratios of ratios and other questions। So we'll continue the new topic, which is partnership, part of ratio and proportion। We will use the concept of ratio, proportion and partnership as well। In next we will complete this। Okay, so far just try to solve। मैंने बहुत सारे लोगों को मेल किया था बुकलेट का, लेट मी चेक, आई विल शेयर इट इन अ ग्रुप। और मैंने बोला भी था प्लीज शेयर इट इन अ ग्रुप। सर एक्चुअली सर 2 ग्रुप हैं सर। एक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सर उनका है, एंड सर एक आई गेस पुराने वाले सर, एक पुराने स्टूडेंट्स का ग्रुप है। तो मे बी सर अभी नए वालों के पास ही गया है, तो सर इसलिए अभी पुराने वालों के पास सर आया पुराने नहीं है। वालों को भी किसी को भेजा था मैंने, एक को। इस पे सब है, पता सुपर नहीं मेंटर्स नाम से जो ग्रुप है, किस न्यू नाम से सर। ज्वाइनिंग सुपर मेंटर्स। नो सर। सर ऐसा ग्रुप सर हमें तो नहीं पता। यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा, कहीं चैट बॉक्स में हो जाते हैं शेयर। यहाँ बुकलेट शेयर हो जाएगी, एक मिनट ट्राई करता हूँ मैं, अगर हो जाती है तो। ऐसे चली गई है। कैन यू डाउनलोड इट? डू यू हैव अ ऑप्शन फॉर डाउनलोड?
सर आई Check. हैव योर ईमेल, आई मेल नहीं, यू एंड देन सर आप मेरे को मेल कर देना, आई विल सेंड इट टू द ऑल द मेंबर्स. कि कौन बोल रहा है मैम? सर सिमरन. सिमरन. यस सर. ओके सिमरन. बाकी सबको पहुंच गया ना? जो न्यू ज्वाइन है उन्होंने शेयर कर लिया अपने आप अपने ग्रुप पे? Yes, sir. I have shared in the new group, sir. Then after the class only I have shared, sir. Okay. Just a minute. I will share with Meenakshi ma'am. So I think we have a email ID which. Just a minute. So we will share with Meenakshi ma'am. सर वो कर दो सर, वो ज्यादा बेटर रहेगा. आप मीनाक्षी मैम को ठीक है. शेयर कर दो. शी विल शेयर इट विद ऑल ऑफ अस. Sure. सर पीपीटी भी सेंड करोगे आप? I will share. PPT I will share with ma'am. Okay. All the PPTs and the booklet. कहाँ गई वो email ID यार? मैं कर दूंगा, ठीक है. I will ask for the email ID. वो है कि email ID उसमें. और I will share with Sonal ma'am और मीनाक्षी. कहाँ गई? Okay, chalo. So we'll continue the new topic, partnership, in the next class. So I think ma'am have recorded the session. So if anyone missed the class, you can see it later as well. Okay. Chalo, have a good day. Bye. Take care. बाय थैंक सर. यू. Bye, sir. Have a Thank you, nice day, sir. sir. Nice job. Thank you. Welcome. हेलो सर. हाँ बोलो. सर जो पहले वाले लेक्चर्स थे फिर वो आप हमें रिपीट करवाओगे? एक ही लेक्चर, एक ही टॉपिक हुआ है अभी बस. ओके सर. परसेंटेज है ना? ओके सर. I also recently अभी ज्वाइन किया है, तो एक जस्ट वन टॉपिक, एक ही टॉपिक मिस हुआ बस. तो जब भी होगा वो रिवाइज कर लेंगे उसे. ओके सर. ओके. थैंक यू सर.